की जो भी शंकाएं होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, उनको क्लियरिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबसे अनुरोध है अपना परिचय देते हुए आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, प्लीज। थैंक यू सो मच। Hello, sir. Yes, yes, please. Hello, sir. I am Ashish Sangma Tamang from Darjeeling. So we are into manufacturing of tea-based functional beverages like kombucha, sparkling tea, and other beverages. So we basically value add to the tea from the small tea growers and make ready-to-drink natural drink which is 100% natural, free from artificial flavor. So let's get into the question directly. Sir, actually, like we don't have much of employees as of now. तो अभी हम लोग के पास लगभग 6 एम्प्लॉइज है। वो केस में क्या कर सकते हैं जिसमें मतलब कम एम्प्लॉइज होने से? अंजन सर, would you please kindly? आपके पास 6 एम्प्लॉय है तो एक्चुअली इट इज नॉट मैंडेटरीली कवरेबल अंडर ईपीएफ एंड एमपी एक्ट, but you can come under the ambit of this act. Now the thing is that if you join right now, I mean 1st August 2025, then the minimum threshold is 20 to get the employees benefit. Okay, but for the purpose of employees will be eligible. But the first timers will be eligible to get the benefit if you get coverage under section 1(4). Okay, we have a section in our act that any employer having less than 20, then they can come forward voluntarily and get the coverage under this act, okay, to get the benefits for their employees. So you can very well welcome to join our organization. But for, and the employees, those will be joining, they will be getting the first time benefit for the first timers, that is part A, 15,000 rupees. Well, so but you will not be eligible for part B. But once you reach 20, then you will be considered. Well, Okay. So thank you so much, sir. Any more queries, please? Hopefully आज के इस प्रोग्राम में तीनों स्टेट से पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन किए हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। तो अब सभी से पुनः हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप एक करके रखें। और हैं हमारे साथ अंजन वो सर जुड़े हुए हैं, तो सर क्लैरिफाई करेंगे। मनोज सर, आपको भी क्वेरी है तो प्लीज रेज करिए। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, मैं मनोज मिश्रा, आई एम द ओनर ऑफ फूडीज एग्रो। सर एक्चुअली मेरे 2 यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसमें एक में 20 का ऊपर एम्प्लॉइज है और एक से 30 प्लस एम्प्लॉइज है। सो लास्ट 2 महीने हुआ है, एक कंपनी को हम लोग प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया है, तो उसमें से ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए और एक जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है वो भी रजिस्ट्रेशन आ गए, रजिस्ट्रेशन नंबर हम ईपीएफ के लिए। सो अभी सर इस जो विकसित भारत जो स्कीम है, इसमें हम लोग कैसे अवेल कर सकते हैं और इसका प्रोसीड्योर क्या है, और एक बार फिर से आप गाइड कर देंगे। और क्या कौन पार्ट ए और पार्ट बी में हम आ सकते हैं, थोड़ा डिटेल से बोल देंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। so you said that there are 2 establishments. I mean, having 20 plus employees. Correct sir. Okay, very nice. So you got the coverage after 1st August 2025. करेक्ट सर। वो एक में तो सर सितंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, राइट, और एक सर जो प्राइवेट लिमिटेड हुआ है उससे अप्रैल में मिल गया था। Okay, nothing to worry. Both establishments are eligible to get the benefit. As I already showed in my slide that if you take coverage after 1st August 2025, then the minimum number of employees should be 20, because that is the minimum requirement under the act. So both the establishments are eligible to get the benefit. Now the first one is, there are 2 parts as I already discussed. Part A is for the newcomers. I mean,
those in the establishment where you got the phone number after September, you know, you said that one establishment has got covered in September, that means all will be treated as new entrants and all will Okay, be sir. eligible for first timers benefit. Okay, that is Okay, 50, sir. up to 15,000 rupees, provided they are to be continued for 6 months. Okay, sir. Try them to keep in the job for 12 months to get the entire benefit. Well, Correct, sir. both the establishments are eligible for Part A and Part B. Okay. Okay, sir. Thing is that the employees are to be continued for 6 months because the Correct, sir. benefits are given 6 monthly. Well, Well, sir. okay. Okay, thank you, sir. Thank you so much. Okay. So we can move to the second scheme. By this time, if any question comes up, we'll take up, no issue on Yes. BBR, right? We can Yes. move to employees enrollment scheme, the second scheme. That is also very fantastic one. So this is another scheme that has been launched from 1st November 2025. This is a kind of amnesty scheme. Now I'll discuss in detail about this scheme, Employees Enrollment Campaign 2020. This is not actually scheme, it's a campaign kind of. So Employees Enrollment Campaign 2025. Now what are the salient features? इसमें क्या मुद्दा क्या है? इसमें ये है कि ये स्कीम 6 महीने के लिए लागू किया गया है, मतलब 1 नवंबर 2025 टू 30 अप्रैल 2026 ये स्कीम मतलब चालू रहेंगे। इसमें कौन-कौन पात्रता किसका है? कवर्स बोथ कवर्ड एंड अनकवर्ड एस्टेब्लिशमेंट, मतलब इस स्कीम का बेसिक पर्पस ये है कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट में कोई एम्प्लॉय को मेंबरशिप नहीं मिला फॉर एनी रीजन द एम्प्लॉय डिडंट गेट मेंबरशिप और द एस्टेब्लिशमेंट वाज नॉट अंडर द एक्ट, वो पीरियड क्या है? 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल। आई विल कम इन डिटेल। मतलब 2017 से जो जो एस्टेब्लिशमेंट या तो एम्प्लॉइज हमारे ईपीएफओ के दायरे में नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वी आर नॉट गोइंग बैक फॉर व्हाट रीजन they could not come or they didn't come, so they are welcome through this campaign. So what is the nitty-gritties? I will discuss in detail. So this scheme has been launched on 1st November 2025 and it will remain open up to 30th April 2026. So the concerned establishment can avail the benefit of this amnesty scheme. Now it covers both covered and uncovered establishment, मतलब जो अभी तक हमारे दायरे में है उनके लिए भी लागू है और जो दायरे में नहीं आ पाए या तो नहीं आए उनके लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब लीजिए कि कोई एस्टेब्लिशमेंट में 25 एम्प्लॉय है लेकिन उन्होंने कवरेज नहीं लिया या तो नहीं ले पाया बिकॉज एनी रीजन, सो दे आर आल्सो वेलकम। So this voluntary declaration for employment, voluntary declaration of employment of all eligible employees who were not enrolled in the past, मतलब ये आप voluntarily declare कर रहे हैं कि मेरा इतना एम्प्लॉय था, मैंने उनको मेंबरशिप नहीं दे पाया, so now I am giving his membership. So this is a kind simple declaration they will give. Now this period I have already said that it is from 1st July 2017 to 31/10/2025। मतलब इस दौरान कोई एम्प्लॉय को मेंबरशिप नहीं दे पाया कोई एस्टेब्लिशमेंट, मतलब वो एम्प्लॉय ज्वाइन किया था लेकिन उसको किसी तरह से छूट गया, पीएफ नहीं दिया गया था, तो उनके लिए एप्लीकेबल है। पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1st July 2017 टू 31st October, वेरी लॉन्ग पीरियड, 8 साल से ज्यादा पीरियड है। इसके दौरान किसी एम्प्लॉय को छूट गया तो उसको दिया जाएगा। उसमें क्या है कि वेवर ऑफ एम्प्लॉय शेयर इफ नॉट डिडक्टेड, मतलब इसमें जो आप अगर एम्प्लॉय से पीएफ का पैसा नहीं काटे हैं तो वो भी मुफ्त है, मतलब वो भी जमा नहीं करना है अभी। ठीक है, लीजिए कोई एम्प्लॉय 2019 में ज्वाइन किया था है लेकिन उसको आपने पीएफ काटा नहीं है,
मतलब पीएफ का दो कंपोनेंट होता है, लेट मी मेक इट क्लियर। एक तो है एम्प्लॉइज का जो सैलरी है वहां से 12% काटा जाता है और एम्प्लॉयर भी 12% देते हैं। सो दिस इज द बेसिक थिंग। तो एम्प्लॉय के सैलरी से आपने काटा नहीं है तो वो आपको जमा नहीं करना है, ठीक है। और क्या है, पेनल डैमेजेस एट लमसम ऑफ 100 रुपीज कंबाइनिंग 3 स्कीम्स। मतलब as I already told that हमारा 3 स्कीम्स है, प्रोविडेंट फंड स्कीम, पेंशन स्कीम एंड ईडीएलएस स्कीम। सो तीनों स्कीम के लिए आपको कंबाइंड 100 रुपया केवल डैमेजेस देना है, वट एवर बी द पीरियड। लीजिए वो 5 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो, 1 साल के लिए हो, आपको केवल टोकन 100 रुपया डैमेज देना है। क्योंकि हमारे एक्ट में क्या है, आपने किसी का कंट्रीब्यूशन 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ नहीं दिए तो उसके ऊपर डैमेज लगता है, सेक्शन 14। तो आप देखिएगा हमारे एक्ट में एक सेक्शन है, स्कीम में भी है। तो वो क्या है, वो भारी रकम होता है, मतलब वेरी ह्यूज वो पेनल डैमेज मंथली कैलकुलेट होता है। तो वो नहीं देना पड़ेगा आपको, इतना भारी रकम आपको चुकाना नहीं है, केवल 100 रुपया आप देके ही ले सकते हैं इसका बेनिफिट। Now, what are the salient features? Coming to that, the declaration for such employees only which are alive and still working with the said establishment on the date of declaration. इसमें फिर एक डिक्लेरेशन की बात है। आप ईपीएफओ के साइट में जाइएगा, एम्प्लॉयर्स लॉग इन कीजिएगा, तो उसमें देखिएगा ईसी डिक्लेरेशन एक आइकॉन है, वहां पे क्लिक कीजिए। वो जो डिक्लेरेशन आप जब फाइल कर रहे हैं वो किन के लिए फाइल करेंगे, जो एम्प्लॉय उस पीरियड में ज्वाइन किया था और अभी भी आपके रोल में है। ऐसा नहीं है कि लीजिए 18 में ज्वाइन किया और 20 में छोड़ के चला गया, उसके लिए नहीं। जो ज्वाइन किए थे उस टाइम में और अभी भी आपके रोल में है, उनके लिए ही आप कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका ये बनेगा, damages बनेगा 100 रुपया, includes assessment cases under section 7 as well, PD liability reduced to 100 per establishment. Employer declaring employees or registering afresh under this campaign are also eligible for benefits under PMVBY subject to terms and conditions। मतलब जो पहले स्कीम हमने बताया कि PMVBY में भी ये पात्रता आ जाएगा, जो नया आदमी को आपने सॉरी नया जो जिसको छूट गया था उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। तो then now coming to financial liability in a tabular form to make you more clear, let's see employee share। employee share अगर आपने डिडक्ट किए हो, जमा नहीं किए हैं, तब आपको जमा करना है, और अगर आपने जमा डिडक्ट नहीं किए हैं तो वेब्ड है, क्लियर। तो एम्प्लॉय शेयर आपने काटे हैं तो जमा करना है, नहीं काटे हैं तो नहीं देना है, वेरी सिंपल। लेकिन एम्प्लॉयर शेयर आपको देना है, ठीक है। लीजिए किसी को आपने 2020 से डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको केवल एम्प्लॉयर शेयर 12% वो देना है आपको, और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 0.5% वो देना है। इंटरेस्ट आपको देना है 12% एज ए इंटरेस्ट, एंड पेनल डैमेजेस 100 रुपया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पर एस्टेब्लिशमेंट फॉर द एंटायर डिक्लेरेशन। तो 100 रुपया, दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय शेयर में पूरा छूट है अगर नहीं काटे हैं, लेकिन एम्प्लॉयर शेयर देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज देना है, इंटरेस्ट देना है और पेनल डैमेजेस देना है 100 रुपया। नाउ प्रोसेस फ्लो क्या है, इसमें हम लोग एक यूएन जनरेट करेंगे। एज ऑलरेडी आई सेड दैट एनी एम्प्लॉय हु विल बी अ मेंबर ऑफ दिस फंड, ही विल बी हैविंग वन यूएन एंड दैट विल validate through FAT, face authentication technology, and the UN will be tagged with his Aadhaar. And then UN into the establishment link on or after 1st November 2025. A separate link, EEC 2025, has been provided in employers. As I already told, you go to the employer's log and you will get one icon, EEC 2025. There you will click and you will file the return. So here you will prepare the challan and also declare with DSC or e-sign, you approve it. Now this is the file structure, not very important for today. This is the file structure, means very simple. You will mention his name, even name, wage, gross wages कितना है, EPF wages कितना है, EPS wages कितना है, EDL wages कितना है, और तीनों स्कीम में कंट्रीब्यूशन क्या है, और NCP नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड क्या है। ये स्ट्रक्चर्ड है,
ये हमारा जो आप जब ईसीआर फाइल करेंगे ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा, तो उसमें आप केवल डेटा फिल अप करना है। दिस इज ओनली टू शो यू, टू मेक यू अवेयर। ये एक सैंपल है, मतलब आप क्या है कि सेपरेट ईसीआर नहीं देना है। सपोज किसी को आपने 2022 से डिक्लेयर कर रहे हैं, तो 2022 टू 2025 सेवरल मंथ्स, तो सेवरल मंथ्स के लिए सेपरेट ईसीआर नहीं देना है। आप कंसोलिडेटेड एक रिटर्न में आप फाइल कर सकते हैं। यही हम लोग दिखा रहे हैं कि आप यू कैन, दिस इज वेरी सिंपल, इन वन गो you can file the ECR. So this is all about not very complicated thing. This is all about EC 2025. So if you have any question and any doubt, please raise this. हेलो, गंगा जय जी, आपको डाउट है तो? यस सर, नमस्ते सर। जी बताइए। सर मेरा सवाल ये है कि पीपीएफ, ईपीएफ और पीएफ ये तीनों कुछ डिफरेंट है या फिर इंटरलिंक है? हाँ, let me make it clear. Under this Act, EPF and MP Act 1952, there are three schemes. Okay. One is Provident Fund Scheme, the Employees Provident Fund Scheme 1952, the Employees Pension Scheme 1995, and Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976. So, when a member joins an establishment, he becomes eligible for three schemes simultaneously. मतलब एक एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं, लीजिए उनका सैलरी 10,000 रुपया है, तो उनका 12% आप काटिएगा फ्रॉम हिज सैलरी, दैट मीन्स 1200 रुपीज। सो 1200 रुपीज 1200 rupees will go to his provident fund. Okay. Now from that 10,000 rupees salary, employee is paying again 12%. That is 12% of 10,000, that is 1,200 rupees. So 1,200 rupees employer is paying. Now this 1,200 rupees is divided into two parts. 8.33 is going to pension fund and 3.67 is going to his provident fund. So the employee's balance becomes 2% plus 3.67, मतलब 15.67%, and 8.33 is nearly 1,000 rupees. That is going to pension fund. Okay, this is the second scheme, and third scheme is EDLI. What is EDLI? On the wages, employee is paying a minimum amount of point, so that is the EDLI fund. Okay, so that is separately paying by the employer for the ECP. Now it is up to 7 lakh rupees. But is making some noise. So am I audible clearly? यस सर, ऑडिबल। यस सर। गंगा जय जी, आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है प्रॉब्लम की वजह से। आप आपका माइक म्यूट करेंगे थोड़ा? हाँ। Fine. So am I clear now? So these are the three schemes. So very fantastic. So every employee is being covered his provident fund that he is paying at the time of retirement, or before that also, for all eventualities he can withdraw partial withdrawal. There are so many benefits are there. All are online right now. A member is not to go here and there. So second is pension scheme, and third is insurance scheme. Insurance scheme is if the member dies during the course of his employment, the nominee gets the benefit. Okay. And pension is when the member attains 58 years of age, members get a pension besides the provident fund. These are the three schemes. सर इसके रिलेटेड और एक मेरा सवाल है सर। Yes. सर मैं 2022 को एक संस्था में मैं काम करता था, उसमें मेरा पीपीएफ अकाउंट है। हाँ। और उसके बाद फिर वहीं पे मैंने छोड़ने के बाद अभी हम लोग कंपनी चला रहे हैं, वहाँ का सीईओ मैं हूँ। और अभी मैं उसमें मेरा मतलब अकाउंट ऐसे होल्ड होकर रह गया है, मैं ना खुद उसमें जमा कर पा रहा हूँ या फिर जिस संस्था में था उसी संस्था से तो नहीं हूँ। अभी मैं कंपनी से मैं एक
तो उसमें कंटिन्यू करना चाह रहा था और इसमें एलिजिबल होना चाह रहा था, लेकिन बात ये हुआ कि हमारी संस्था में कम से कम 21 एम्प्लॉय होने से ही हम इसका मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर उसमें एलिजिबल हो सकते हैं। इसलिए मैं अभी मेरा अकाउंट ऐसे ही पड़ा हुआ है और मैं अभी उसमें कुछ नहीं कर पा रहा। तो क्या मैं खुद ही उसमें डाल सकता हूँ या फिर ऐसे कुछ बेनिफिट का कंटिन्यूस में कर सकता हूँ, या अभी मैं भी कंफ्यूज हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, मतलब पूरा सुन नहीं पाया। एनीवे, मतलब आप एक कंपनी में छोड़ दिए हैं। गंगाधर जी, आपने कोई ईयरफोन लगाया हुआ है क्या? जी सर। आपने कोई ईयरफोन लगाया हुआ है? जी जी सर। उसको एक बार निकाल के बोलेंगे तो मेरे ख्याल से आपका आवाज साफ आएगा। हाँ हाँ, अभी साफ आता है। अभी आप आपका डाउट पूछिए दोबारा। हाँ जी सर, मैं एक संस्था में काम कर रहा था, वहाँ पे पीपीएफ का एलिजिबिलिटी था, मेरा पीपीएफ अकाउंट खुला हुआ था, मेरा 12% वो कटता था और पोर्शन में जो जैसे आपने सार बता रहे थे सेम टू सेम बेनिफिट मैंने पाता था। लेकिन कंपनी जब हमें शुरू किए तो उसके लिए उसी संस्था वालों ने अलग से वो कंपनी बना करके हमको छोड़ दिए। अभी वो कंपनी में हम लोग सिर्फ 3 ही स्टाफ है। इसलिए मैं अभी फिर वो जो अकाउंट मेरा जो सैलरी आता था वो सैलरी वो कटता था, लेकिन अभी जो सैलरी मेरा आ रहा है वो कट नहीं रहा है, क्योंकि मैं उसी पीपीएफ की क्राइटेरिया में मैं डिस्क्वालिफाइड हो जा रहा हूँ। तो इसीलिए इसका कुछ प्रावधान है कि मैं पर्सनली भी उसमें कुछ जमा कर सकता हूँ या फिर मुझे 21 मेंबर होते तक मेरे को इंतजार करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, हमारे एक्ट में क्या है कि वंस द मेंबर इज कवर्ड ही रिमेन्स ऑलवेज कवर्ड, employment strength goes below 20. So what I got from your point is the employment strength has gone down. ऐसा नहीं है कि 3 हो गए, वो बात नहीं है। जी You will जी continue to get the benefit. ठीक है? It is not directly related to today's program. Anyway, this is the issue. If the employment strength goes down below 20 after coverage, so nothing doing, the employees will be getting the same benefit until unless the employee establishment is not closed. Okay. लेकिन सर मेरा जो कंट्रीब्यूशन तो नहीं हो पा रहा है। नहीं, are you getting wages? मतलब आपको सैलरी मिल रहा है कि नहीं? जी मिल रहा है सर, मैं लेकिन दूसरे संस्था से, अभी कंपनी से मुझे मिल रहा है। पहले जो एक एनजीओ में था उसी एनजीओ से तो मेरे को नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी मैं मतलब उसी आप एनजीओ में रिजाइन कर दिया हूँ, अभी फिर कंपनी में आ गया। ओके ओके, जी तो मेरा आंसर थोड़ा ये मॉडल पूरा सुन नहीं पाया आपका। तो आपने वो पहले वाला कंपनी छोड़ दिए हैं? जी पहले वाला का हाँ, वो एक ऑर्गेनाइजेशन था उसमें छोड़ दिया हूँ सर। छोड़ दिए हैं, नया कंपनी में ज्वाइन किए हैं, ठीक है? जी जी जी। अच्छा, वहाँ वो क्या पीएफ के कवर्ड में है, कवरेज में है? नहीं सर, अच्छा, उसमें कितना एम्प्लॉई है? हमें सिर्फ 3 ही लोग हैं सर। 3 ही लोग हैं। तो जी नया जो कंपनी है 3 लोग है, वो कंपल्सरीली कवर्ड नहीं है हमारे एक्ट के दायरे में। मतलब ओके तो आप एज ऑन डेट तो आपका वो इवेंट का जो पहले आपने 22 में जो जो पहले वाला जो इवेंट दैट विल रिमेन वैलिड वंस द जी एस्टैब्लिशमेंट इज कवर्ड, when the or either it comes under 1/4 voluntarily coverage, it will keep on running. But your जी previous contribution previous will be valid. Okay, ओके सर। nothing to worry about. Please ओके don't close that. Please keep the valid. Okay. ओके 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 ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Uh, और कोई होंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स कुछ पूछना चाहेंगे? बड़ा ही यूजफुल सेशन है। आपको पता है कि ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, है ना? और ये क्रूशियल इसलिए भी है कि अब गवर्नमेंट की ये चल रही है प्लान की इसकी जो पोटेंशियलिटी है ना? इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप है इसको ट्रांसफॉर्म करने की जो चल रही है बात, इस पे आप सबका योगदान इक्वली जरूरत है। आप सबको जुड़े रहना पड़ेगा इस मुहिम के साथ, इस मिशन के साथ, तभी ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाएगा अक्रॉस द कंट्री, है ना?
तो कई सारे महत्वाकांक्षी इसमें प्रावधान रखे गए हैं इस स्कीम में, जैसे कि आपके एम्प्लॉयमेंट को कैसे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है उसको बूस्ट कैसे करना है। तो इवन इतना बढ़िया सा एक प्रोग्राम प्लानिंग रखा हुआ है इसमें कि करीबन करीबन 3.5 करोड़ न्यू जॉब्स कैसे अगले 2 साल में जो है क्रिएट किया जाए, है ना? वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है फोकस करते हुए, है ना? तो इसमें क्या है कि जो सर जैसे कह रहे थे कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की प्रोविजन इसमें रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने, है ना? ताकि वो थोड़ा एनकरेज फील करें और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज को रिक्रूट करें अपने जो है उसमें कंपनीज में, ताकि नए जो है उसका अपॉर्चुनिटी, उसका एम्प्लॉयमेंट का जो है अपॉर्चुनिटी मिले लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ उसमें आ जाए, एम्प्लॉयमेंट वाले जो अपॉर्चुनिटी के उसमें दायरे में, है ना? तो ये इस तरह की बहुत सारे इसमें ये आपके जो वर्कफोर्स है उसको फॉर्मलाइज करना है ना? किस तरह से मैक्सिमम एम्प्लॉइज को सोशल बेनिफिट दिया जा सकता है, सोशल सिक्योरिटी दिया जा सकता है ना? ताकि वो और एनकरेज फील करें, है ना? अपने आप को बेहतर पोजीशन में पाएं, ताकि मन लगा कि काम करे कंपनीज के लिए और कंपनी भी तरक्की करे दिन ब दिन, है ना? तो इस ये सारे प्रोग्राम्स का जो हमारे जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कह सकते हैं, इम्प्लीमेंटिंग नोडल बॉडी कह सकते हैं, हमारी ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो सर लोग है जुड़े हुए हैं इस उसमें प्रोग्राम में हमारे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपकी तरफ से आएंगे तो उसको क्लैरिफाई भी हम कर पाएंगे हम लोग बेहतर तरीके से, सर लोग हैं, है ना? तो आप लोगों को भी थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इस स्कीम के बारे में। Thank you so much. We are expecting more and more queries from participants. Please. सर एक पार्टिसिपेंट का क्वेरी आया हुआ है हाँ। कि जो जो प्रेजेंटेशन सर ने अभी प्रोग्राम के टाइम पर दिखाया, क्या उसका कॉपी मिल सकता है पार्टिसिपेंट्स को, जिससे कि वो स्कीम के बारे में और डिटेल्स खुद से देख सके? Yes. We can share the PPTs. No issue. We can share. ठीक है सर। Also, sir, if yeah, we have the regional offices across India, so any if you have any doubt, any employer has any doubt, they can immediately contact the concerned regional office, or this zonal office is always open to address all the issues. So please feel free to contact our regional offices. Our enforcement officers are very actively launching and propagating this scheme, so you will get full support. Even if you are not in a position to raise any query or doubt, subsequently any question comes in your mind or any practical problem you face, so please feel free to contact our regional offices, and the addresses are provided in our website, and also this zonal office to help you in any situation. And I will request all the employers to please register them in PBRY. This is a very simple registration process. So that I'll request APIDA to kindly motivate the employers to get them registered. Manoj Mishra ji wants to say something. Please, sir. Yes, sir. Sir, we are located in Baharampur, Murshidabad. So, please Yes. tell me where is the regional or zonal office? I think regional office to Kolkata mein hoga. No. So, Regional office is at Baharampur only. It is at Baharampur. We have the regional full-fledged regional office at Baharampur. Okay. okay. Thank you so much. This is in Kolkata. It is the zonal office, the controlling office of that regional. Okay, sir. Thank you so much, sir. Mm-hmm. Thank you so much. Anyone is having any query, please? किसी को और कुछ पूछना है सर? इवन आप लोगों की तरफ से कोई सुझाव होगा, सजेशन होगा? I think अंजन सर, we can definitely take that one. So, अगर आपके पास कोई सुझाव है आपकी तरफ से तो वो भी आप दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में.
Mandalji, that Sir has ji. been very fruitful and interactive session. Thank you, sir. Thank you so much. So I think we have come to the closing of this session. Yes, sir. So our motto is to this whole benefit जितने भी इसके benefits हैं, है ना, स्कीम प्रोविजंस के, वो कैसे सब इंडिविजुअल्स तक पहुंचे, बिजनेस ग्रुप तक पहुंचे, सेटअप तक पहुंचे, है ना. जी तो जी क्या होगा कि सर इससे so that by promoting employment, formalization and economic growth, so this scheme has the potential to transform India's development trajectory. ये स्कीम के साथ इस टारगेट के साथ हमें चलना है. जी जी. Then thank you everyone for their time, and thank you Mandalji for organizing such a wonderful sir. webinar. Thank you, sir. We'll keep interacting, and we are here to clarify or guide any doubts arising. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Avinash, ठीक है please सर. conclude the meeting. ठीक है, अगर आप लोगों के और कोई क्वेरीज नहीं है तो हम लोग मीटिंग को यहीं पर कंक्लूड करेंगे. थैंक यू EPFO फॉर डिलीवरिंग presentation and describing the benefits of scheme to our participants, and thank you very much to our participants also to join for joining this meeting. Now I think we all can leave. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you very much.